Welcome back. Good evening, everybody. Today we will continue with the topic refraction of light, 10th ICSE. And in the previous lecture, we had tried to cover the introduction part of what exactly light is. What does the term refraction mean? What all phenomenon does the light go across? Right? The branch of science which deals with lights and its phenomena is called as optics. Yes, then we had tried to understand light as a quantity which has got two types of behavior. One is the wave like behavior, other is the particle like behavior. Yes, no, we had already classified all those things in detail. When we talk about light as a particle, we enter into another branch of physics which is called as quantum physics. When we are talking about the light as basically a wave, we enter electromagnetic wave, I mean, so we enter into the world of optics, right? So it's very important that we understand these branches in the way they are at first. Secondly, the topics which had been discussed in the last lecture, it was very important that you people go through all of them again and again, because that was the introductory part, introduced many number of things around. Today's topic would be a bit sort of aligned area towards the laws of refraction. Okay, so that day we try to understand the general structure of what exactly refraction is, what exactly is the structure or the ideology of wave optics or the refraction mechanism, है ना? Right? But today we will try to understand the laws which govern the entire refraction mechanism, right? And then few more topics that we'll discuss one by one and proceed ahead. So first target would be to go for laws. So let us go to the board and try to exactly understand what exactly does the law of refraction state. Reflection also had got the law. You guys remember what was the law of reflection? Law of reflection. Incident ray, normal, and the reflected ray lie on the same plane. याद incident ray and reflected ray both lie on the different sides of normal. ये तीसरा था. दूसरा था. तीसरा, angle of incidence was equal to angle of reflection. That was third law. You guys remember those things? Yes, no? Yes. पक्का? यहाँ पर भी हमारे पास कुछ laws हैं. Let us try to understand what are those laws. I'll take you to the board. Just be ready. Here we are. Very important. So this is the glass block that you have. And then the glass block is to be used in a different way. Let us Sir, you are muted. So this is an interesting structure that we have. The beauty of this block is we can have the experience of both the types of refractions right here. What does this mean? This means from rarer to denser, you can experience at this part. From denser to rarer, you can experience at this part. So this is the elegance of this diagram. Correct? Okay. So now because this is a glass set, let us try to understand what exactly is the law of refraction. Now let us see this part first. Yes, so I'm writing a laws of refraction. Laws of refraction. This also says first law is same. What is first law? Incident
ray, refracted ray, refracted ray, and normal lie on same plane. ये पहला. दूसरा, इंसिडेंट रे and can you see those rays? Refracted ray lie on opposite sides. Opposite sides, किसका opposite sides? Of normal. Beautiful, है ना? सी, उसमें क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन यहाँ पे चीजें बदल जाएगी. यहाँ पे चीजें क्या बदलेंगी जरा सुनना. दिस इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. is equal to constant. Sin I by sin R is equal to constant. Beautiful statement. Sin I by sin R is equals to constant. This is third law. This is the third law. Look, and this constant depends upon the pair of mediums chosen. It depends upon pair of medium chosen. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? The pair of medium chosen as incident and refracted medium. Sorry. Refracting medium. This is better. Refracting medium. ठीक है? पक्का? It depends upon pair of medium chosen as incident and refracting medium. This is so interesting. यानी कि आपने किसको इंसिडेंट मीडियम समझा है, किसको रिफ्रैक्टिंग मीडियम समझा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या होता है जरा सुनना. साइन आई बाय साइन आर इसके लिए जो होगा, साइन आई बाय साइन आर इसके लिए वो नहीं होगा, इसके लिए अलग होगा. क्या बोला मैंने? इसके लिए जो साइन आई बाय साइन आर होगा वो साइन आई बाय साइन आर इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए अलग होगा. मतलब क्यों सर ऐसा? क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा है? रेयर टू डेंसर. एयर ग्लास. ये अगर मैं ग्लास पकड़ लेता हूं तो दिस इज एयर, दिस इज ग्लास. तो एयर ग्लास एंड दिस इज ग्लास एयर. तो एयर ग्लास और ग्लास एयर दोनों का रेशियो अलग अलग आएगा. ब्यूटीफुल, जबरदस्त बात. एयर ग्लास और ग्लास एयर का वैल्यू अलग अलग आएगा. सर क्या बात करते हो? हाँ. और इसको कहते क्या है मैं ये बता दूं. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ब्यूटीफुल थिंग. क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, देखो ऐसा म्यू. क्या हम ये बाद में देखेंगे, राइट? सो यू विल करेंटली राइट दिस डाउन. लिखो फटाफट जल्दी से. Write this down. Every sentence, every word is very, very important.
Now we will try to understand the concept of refractive index. But before understanding this, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. देखो, what is the cause of refraction? आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है? दिस इज वेरी ग्रेट क्वेश्चन कि आखिर रिफ्रैक्शन क्यों होता है. रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? तो इसका आंसर है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट in different mediums. ध्यान रखना, स्पीड चेंज होता है. डेंसर मीडियम में स्पीड इज लेसर, रेयर मीडियम में स्पीड इज मोर. व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द वेव्स लाइक दिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करता हूँ, लाइट वेव्स की अगर मैं बात करता हूँ, साउंड के केस में उल्टा होता है. साउंड के केस में उल्टा होता है. लाइट में क्या होता है? लाइट के केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में क्या होता है कि जो रेयर मीडियम होता है ना, उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है. तो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा स्पीड उतनी कम होगी. इसलिए अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगा. समझ आ रही कि नहीं बात? यस नो? क्या बोला मैंने? अगर यहाँ पे मैं ग्लास रख रहा हूं तो अलग स्पीड होगा, केरोसिन रख दो अलग स्पीड होगा. ठीक है, ग्लास में भी अलग अलग टाइप का ग्लास होता है ना. मैं कुछ और कोई क्रिस्टल रख दूं तो अलग स्पीड हो जाएगा. जैसे जैसे हम ये मटेरियल बदलेंगे ना तो क्या होगा, रेयर और डेंसर मीडियम का पेयर विल चेंज. सो डेंसर दिस मीडियम, more would be the refraction. By saying this term, more would be the refraction, it means angle r will become smaller. More would be the refraction means what? Angle r would be smaller. Yes or no? Deviation would be more. If the speed is less, deviation would be more and r will get smaller. The smaller value of r represents high refraction. Okay, suppose if this line passes straight away, this light ka line, ray of light passes like this only, then r will be greater. Okay, so there is no refraction. So in that case, if suppose it keeps on getting smaller, if the value of r keeps on getting smaller, the value of delta will increase. You guys remember delta is equals to I minus r? Yes, no? Delta is equals to I minus r in this case. From rarer to denser, from denser to rarer, it is r minus I. So more the deviation, more is the refractive index. Okay, right? So this is what we need to understand. If suppose the ray is moving with the slower speed, it will bend more to the normal. Slower the speed, it will bend more to the normal. Okay, this is the cause of refraction. Understand this. Okay, now we'll go to the term called as refractive index, right? Now see here, this is the glass. This glass is made up of certain material and this is air. This material and air has a constant relationship. If suppose I change this material, if I change the glass and substitute it by another crystal having different density, my refraction will change. Sir, why? Because these two mediums are connected to each other, are related to each other with a quantity called as refractive index. Okay, so refractive index is the optical relationship between two medium. What is refractive index actually? If we try to understand what is it actually, it is the optical relationship
between two materials, between two materials with respect to refraction, with respect to refraction. This is very important. Optical relationship between two materials with respect to refraction. This definition in itself is very important. What is refractive index? What does this tell you? It tells you about optical relationship between two materials. और किसको ध्यान में रख के? रिफ्रैक्शन को ध्यान में रख के. ठीक है? यस कि नो? यस नो? हाँ. हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सुनना क्या बोल रहा हूं? हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर वुड बी द रिफ्रैक्शन. Refractive index is written as, it is written as mu, mu है ना. तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, यहाँ पे सिंबल लिखता हूं, सिंबल, सिंबल mu. ठीक है. 1 2, कई बार लोग 1 नीचे भी लिखते हैं, 1 2 ऐसा. या फिर इसका लिखने का एक और तरीका है, एक और तरीका है, एक और तरीका. दूसरा तरीका देखो क्या है. कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 2. इसको म्यू बोलते हैं, एम फॉर मंकी. इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, न्यू, एन फॉर नासिक. ओके, सो दिस इज म्यू, एन फॉर न्यूयॉर्क. सो दिस इज म्यू एंड दिस इज न्यू, NU. This is NU. This is MU and this is NU. Okay, so you can use this symbol or this symbol. Both are okay. No problem. Both are valid. ठीक है? Yes, no? Now look here. Yes, sir. हाँ. So this is refractive index of second medium with respect to first medium. उसको पढ़ते कैसे? बोलो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ये 2 लिखा है ना, तो सेकेंड 1. ठीक है. तो दिस इज सेकेंड मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम. तो म्यू ऑफ ग्लास टू एयर, ये ग्लास है ना और ये एयर है. अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, इसका, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है अभी मुझे, तो आई विल राइट हियर म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू ए. गॉट इट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. इसका लिखना है तो इसका, अब यहाँ पे लिखना होगा तो एयर का लिखेंगे ना हम लोग, क्योंकि एयर में बाहर जा रहा है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसा. तो इट डिपेंड्स कि हमको कैसा लिखना है. ठीक है, मैं मिटा देता हूँ वापस से, गंदा लग रहा है लिखने में. ठीक है. हियर वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. आई थिंक इट इज क्लियर, राइट? तो दिस इज सिंबल एंड दिस इज नोटेशन. होप इट इज क्लियर. अब इसका सिग्निफिकेंस तुम लोग को मैं बताता हूं, फिर बाद में डेफिनेशन बताऊंगा. सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है हायर द वैल्यू ऑफ RI, more is the refraction. बात समझ आ रहा है क्या? हायर द वैल्यू ऑफ RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द रिफ्रैक्शन. तो जितना ज्यादा RI का वैल्यू होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
higher the value of Ri, more is the refraction. Please note this down. Write it, then we will write formula as well. ये आपका मेन टॉपिक है, उसके अंदर ये तो आपका मीनिंग हो गया, ये फर्स्ट मीनिंग हो गया. You write it like this. Main topic is refractive index. Then you draw this diagram. Then you write here first. Okay. Then you write here second. Then you write here third. Main topic is refractive index. Then you draw the diagram. Then you write 1. Then you write 2. Then you write 3. Write it. Written. This is very good situation. Can you look at this? Yes or no? Yes, no? Yes. Now looking at this diagram, tell me which is rarer medium and which is denser medium. Looking at this diagram, the diagram which I have already drawn, Upper one is which is denser. rarer medium and which is denser medium? Upper is denser. Perfect. So ये ऊपर वाला जो है ना, this is denser and this is rarer. कैसे समझा सर? कैसे समझा? The angle with normal. Here R is less than I ना, तो whenever R is less than I इसका मतलब डिविएशन ज्यादा हुआ, स्पीड कम हो गई होगी, तभी तो डिविएशन ज्यादा हुआ. डिविएशन ज्यादा हुआ मतलब कि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ. बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ, लाइट यहाँ से जा रही है, आपने एरो दिखाया हुआ है सर, राइट? और I और R भी लिखा हुआ है, उससे मालूम पड़ जाता है कि ऊपर वाला डेंसर और नीचे वाला रेयर है. अब जरा सुनो, मुझे निकालना क्या है जरा देखना. मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, दुनिया का सबसे रेयर मीडियम कौन सा होता है? Which is the rarest medium of the world? Tell me. Vacuum. Vacuum, not just world, universe. So rarest medium is vacuum. और अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के लिए ऑलमोस्ट इक्वल टू वैक्यूम कौन होता है? ऑलमोस्ट, ये इक्वल नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, उसको हम बोलते हैं एयर. क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट इक्वल टू वैक्यूम इज एयर. दुनिया का सबसे रेयर मीडियम है ये दोनों. वैक्यूम एकदम रेयर है, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा एयर है, बाकी सारे थोड़े डेंस होते हैं. ठीक है? यस नो? टेल मी. Yes, sir. Yes. So now when we are trying to study from rarer to denser का understanding, if we are trying to derive from rarer to denser का understanding, तो अगर मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये मीडियम निकाल लूं, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा. राइट? तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा एयर है. ये जो हमने रेयर मीडियम लिखा हुआ है ना, दिस रेयर मीडियम इज एक्चुअली एयर या वैक्यूम, आपको जो मानना है, दोनों में से कोई एक चीज मान लो आप. राइट? अच्छा, अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की है. हमने ये फॉर्मूला देखा था, याद है कि नहीं याद है? याद है ना? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर देखा था, है ना?
मैंने कहा था अगर म्यू ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा और म्यू कम होगा तो रिफ्रैक्शन कम होगा ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? हाँ अच्छा बोला था ना। अभी जरा सुनना, सुनो क्या हो रहा है इस सिनेरियो में अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। क्लियर? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर? ये मान लो ये वन, मीडियम का नाम देते हैं हम लोग, इसको हमने नाम दे दिया 2 और इसको हमने नाम दे दिया 1, बराबर है ना? यस नो? यस हाँ, तो अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को कैसे मिलेगा? इसका इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्शन, मतलब सर साइन आई अपॉन साइन आर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो आपने यहां पर लिखा हुआ है सेम चीज मिलेगी। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन आई अपॉन साइन आर अगर बड़ा हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाएगा। साइन आई अपॉन साइन आर अगर बड़ा हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हुआ तो ये और बेंड होगा, यस कि नो? बराबर है ना? राइट है ना? अच्छा साइन आई अपॉन साइन आर कब बड़ा हो सकता है? साइन आई अपॉन साइन आर बड़ा कब हो सकता है? ये हम लोग फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे हैं, ये हम लोग सेकंड मीडियम की बात कर रहे हैं, बराबर ना? राइट और नॉट? हाँ अगर मान लो साइन आई बड़ा करना है मेरे को, तो या तो मैं इसका बेंडिंग बढ़ाऊं, पर सर इसका बेंडिंग बढ़ाऊंगा, जैसे इसका बेंडिंग बढ़ाऊंगा तो इसके बेंडिंग में भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये पेयर तो कांस्टेंट है ना, पेयर तो सेम है, तो सर बेंडिंग बढ़ाने से काम नहीं होगा। तो देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं तुमको, जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता ये रहा हूं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे जो लाइट पास की, यहाँ पे जो मैं लाइट पास कर रहा हूं उसकी वेलोसिटी इसके अंदर अगर उसमें वेलोसिटी की बात करो और इसकी वेलोसिटी की बात करो तो कौन सी वाली वेलोसिटी ज्यादा है? कौन सी वाली वेलोसिटी ज्यादा है? रेयर करेक्ट सर, इसमें वेलोसिटी ज्यादा है और इसमें कम। हाँ सर इसमें वेलोसिटी कम है, इसमें वेलोसिटी कम है, इसमें वेलोसिटी ज्यादा है। अच्छा जब मैं इसको डेंसर करूंगा तो क्या कम होगा? वेलोसिटी कम होगा, यस कि नो? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो हाँ जरा ध्यान से देखना, इसका ये जो डेंसर मीडियम है जिसका हम म्यू निकाल रहे हैं, म्यू इज म्यू 2 अगर मैं बोलता हूं 2 to 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू velocity of light in second medium, yes or no? अगर मैं भी बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं मान लो इसको डेंस करता हूं, इसको हेवी कर दिया मैंने, बराबर है, तो लाइट ज्यादा बेंड होगी, बराबर है ना, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा। तो जितना मैं इसको डेंस करते चले जाऊंगा इसका म्यू बढ़ते जाएगा और वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि μ2 ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v2। समझ आ रही क्या बात? हाँ उसी तरह से मैं इसकी बात करता हूं, तो ये देखो μ2 ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v1। सर क्या बात करते हो? हाँ, इसके साथ में जो वेलोसिटी है, जब ये डेंस होगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी हम बात करते हैं। जब ये डेंस होगा तो इधर वेलोसिटी कम होगी लेकिन इधर तो कुछ नहीं होगा ना, बराबर ना? राइट? हाँ, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसके वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअली
द कंसेप्ट ऑफ, मैं दिखा दूं एक्चुअल फॉर्मूला क्या है. एक्चुअल फॉर्मूला है म्यू 2 बाय म्यू 1 is, या म्यू ऑफ 2 with respect to 1 is equal to v of 2 upon v of 1 upon v of 2. समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया. समझ में आ रहा है? तो मुझे ये म्यू का फॉर्मूला मिला. कैसे मिला वो देखा? जैसे जैसे इसका डेंसिटी बढ़ेगा, इसका म्यू बढ़ेगा बट वेलोसिटी कम हो जाएगा. तो इसके साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या? म्यू और वेलोसिटी. बट इसके साथ में म्यू और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ध्यान देना, इसके म्यू की बात नहीं कर रहा हूं, इसके म्यू की बात कर रहा हूं. इसका म्यू इसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए हमको ये फॉर्मूला मिला. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसीलिए मैंने कहा था कि आपका वेलोसिटी जितना जितना कम होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होते चले जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रेशियो का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा. सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. Okay, so what is refractive index of a medium with respect to another medium? Refractive index of a medium is defined as the ratio of first medium's velocity upon second medium velocity. ठीक है? तो mu of 2 with respect to 1 is equal to v1 upon v2. ये बात आपको दिमाग में बिठानी है. और उसके बाद में हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसमें लिंक करेंगे और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ. क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ. ठीक है? हाँ, राइट राइट. समझ में आ रही बात? ओके, तो इस तरह से हमको इस बात को समझ लेने का है कि सर हमने क्या किया, हमने म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकाल लिया. म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकाल लिया. कैसे? v1 अपॉन v2 करके. बराबर है? तो अभी स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? सर देखो, मैं पूरा स्नेल्स लॉ एक साथ लिख रहा हूं. म्यू 2 with respect to 1 is equal to sin I by sin R is equal to V1 upon V2. This is your Snell's law. I hope it is understood. Clear ना? Yes कि no? समझ में आ रही बात? Yes. ओके. अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम. पक्का? कृपया इसको नोट करें. ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अपने हिसाब से तुम लिख सकते हो. ये एकेडमिक्स में आएगा तो पहले ये लिख लो, बाद में कहीं पर ये लिख के ऐसा बॉक्स में डाल देना, या इसको ऐसा लिख के ना यहाँ पे लिख दो ऊपर, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, कुछ भी मर्जी है. और इसको याद कर लो. म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2. म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2. म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2. याद हो जाएगा. आप लोग लिखिए. जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं लिखना है, वो बाद में लिखना है, टाइम है.
जल्दी से। डन, चलो यहाँ पे ध्यान दो। आई होप इट इज डन। Okay, look here. I have written something very special. What? Speed of light in air or vacuum. Can you see this? Speed of light in air or vacuum? Yes or no? Yes. पक्का ना? Yes. कितना लिखा है मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम? 3 into 10 raised to 8 meters per second. ये स्पीड है लाइट का। It is the fastest object moving known to mankind. No other object has got the capacity to move faster than light, at least till now, as per our research. Okay, it is represented by symbol C. ये हर जगह यूज होता है C, इसलिए याद रख लो। Small c is used to represent the speed of light. 3 into 10 raised to 8. किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के स्पीड को आप C1, C2, C3, C4 लिख सकते हो, नहीं तो फिर V1, V2, V3, V4 लिख सकते हो, मर्जी है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर और वैक्यूम में ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बेंड द लाइट विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये मैंने लाइन बनाई और मैंने यहां पर केरोसिन रखा और यहां पर वाटर रखा, समझ में आ रही क्या बात? पक्का है ना? मैंने इसको मीडियम 1 बोल दिया और मैंने इसको मीडियम 2 बोल दिया, बराबर? तो लाइट जब इसमें से पास होगी ना तो भी रिफ्रैक्ट होगी, तो भी रिफ्रैक्ट होगी, इस बात की गारंटी है। अगर लाइट इसमें से पास होगी तो भी रिफ्रैक्ट होना ही होना है उसका, इट इज गारंटीड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? राइट? तो जब लाइट इसमें से पास होगी तो उसका रिफ्रैक्ट होना गारंटी सर। वाटर से केरोसिन में जाएगी तो भी रिफ्रैक्ट होगी, केरोसिन से वाटर में आएगी तो भी रिफ्रैक्ट होगी। अगर मान लो वाटर से केरोसिन में गई तो मुझे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? वाटर से केरोसिन में गई तो कौन रिफ्रैक्ट करेगा? केरोसिन। और केरोसिन से वाटर में आई तो वाटर। हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? नेक्स्ट मीडियम का। तो अगर 1 से 2 में आई तो 2 का निकालेंगे और 2 से 1 में गई तो 1 का निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? तो यानी कि अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो मैं क्या निकालूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं निकालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और अगर मुझे इसका निकालना होगा तो
सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सो सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इसका निकलेगा, और अगर मुझे इसका निकालना होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे काम की चीज क्या है देख लो, काम की चीज ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज obtained for next medium, first medium नहीं, हाँ, next medium, refractive index is always obtained from for next medium। ये दिमाग में बिठा लो, ये तुम्हारा नोट है, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखो सुनो, अगर मान लो एक मीडियम एयर है और मेरा पार्टिकल एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है, बराबर ना। तो एयर को हम लोग स्टैंडर्ड मीडियम मान लेते हैं। क्या मानते हैं एयर को? एयर को हम क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड मीडियम। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने बोला 5, तो 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब क्या होता है? 0 से 5 स्टेप आगे इस 5। तो 0 हमारा क्या है? स्टैंडर्ड है। तो हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया। 0 से लेफ्ट में जाओगे तो -5, राइट में जाओगे तो +5, ऊपर जाओगे तो +5, नीचे जाओगे तो -5। तो 0 हमारा स्टैंडर्ड हो गया। समझे नहीं समझे? वैसे ही हम एयर को स्टैंडर्ड मीडियम मानते हैं। क्या करते हैं? एयर को स्टैंडर्ड मीडियम मानते हैं। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और बोला जाए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो मेरे सामने एक सवाल आएगा। एक ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। सुनना, किसी एक ऑब्जेक्ट का अकेले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो 2 मीडियम के बीच की बात है। कम से कम 2 मीडियम होना चाहिए, कम से कम। तो जब कोई मीडियम नहीं रहता तो हम एयर को मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल, दुनिया का हर नंबर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। समझे नहीं समझे? अगर मैं किसी भी नंबर को साइन नहीं डालूं तो वो पॉजिटिव होगा, 0 को छोड़ के वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होता तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो प्लस है। वैसे ही अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दे दूं और बोलूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो किसी एक ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो नहीं सकता। तो ऐसे सीन में हम क्या करते हैं? दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा मीडियम हम एयर मान लेते हैं, और ऐसा मानते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू दैट मीडियम, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बताते हैं। ठीक है, तो याद रख लो इस बात को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैंने आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, इसका मतलब एक्चुअली आई एम आस्किंग यू कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। दिमाग में रहेगी बात? पक्का है ना? तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर रहेगा, बात खत्म। अच्छा, उसी ऑब्जेक्ट को उठा करके मैं पानी में डुबा दूं और तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछूं, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैंने ऑब्जेक्ट उठाया, पानी में डुबा दिया और पानी के अंदर तभी पूछा, अच्छा बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं पूछ रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बात समझा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पे मैं एयर से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किससे पूछ रहा हूं? वाटर से, क्योंकि मैंने उसको पानी में डुबा दिया। आई होप इट इज क्लियर। समझ आ रहा है? इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास में 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक होता है बाय डिफॉल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, और दूसरा होता है मीडियम बेस्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि दूसरे मीडियम में होता है। जैसे उसी ग्लास को मैंने खाली पूछा तो एयर के साथ, पानी में डुबा दिया तो पानी के साथ, केरोसिन में डुबा दिया तो केरोसिन के साथ, पेट्रोल में डुबा दिया तो पेट्रोल के साथ, सबके साथ अलग अलग होगा, सबके साथ। लेकिन बाय डिफॉल्ट किसके साथ होगा? एयर के साथ। क्लियर हो गई बात? पक्का? तो अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो मैं इस पार्ट को मैं रब करने जा रहा हूं, ये नोट हमेशा रहेगा। मैं सिर्फ इस पार्ट को तुम्हारे लिए लिखा था वो मिटा देता हूं, और मैं देखो क्या लिखता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि रिफ्रैक्ट, ये 5वीं बात है, एक्चुअली 5th चीज है ये, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
क्लासिफिकेशन, वाओ, क्लासिफिकेशन मतलब कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्लासिफाई करने जा रहा हूं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्लासिफाई करने जाता हूं ऐसे, तो दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। समझे? एक होता है बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। सर क्या नाम है? एब्सोल्यूट। क्या नाम जानते हैं? डिफॉल्ट या फिर एब्सोल्यूट। सर दूसरा जो होता है ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब आपने जो मीडियम चुना उसके हिसाब से चीजें बदल जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, और रिलेटिव जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम का नाम मैंने एम रख दिया है ना, ये देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये जो मीडियम है ना मेरा सर, मीडियम का नाम मैंने एम रख दिया, एम। कैन यू सी दिस? मीडियम का नाम मैंने क्या रख दिया? एम। तो देखो अगर मैं डिफॉल्ट और एब्सोल्यूट की बात करूंगा, अगर मैं डिफॉल्ट और एब्सोल्यूट की बात करूंगा तो इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? अगर मैं डिफॉल्ट और एब्सोल्यूट की बात करूंगा तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, और अगर मैं रिलेटिव की बात करूंगा, अगर मैं रिलेटिव की बात करूंगा तब मैं किसकी बात करूंगा? रिलेटिव मतलब मुझे एम से चाहिए तो एम से चाहिए, पर विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। सो विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग मतलब मैं यहाँ पे एन डाल दूं, एन मत डाल, छोड़ो, मैं यहाँ पे ए भी नहीं डालता हूँ, पी एन क्या डालोगे आप? विथ रेस्पेक्ट टू से वन बोल देता हूँ, वन चलेगा? चलेगा? वन मतलब एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम, इट कैन बी एनी मीडियम ऑफ योर चॉइस। क्लियर? पक्का? यस कि नो? तो देखो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है तो हम क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अलाउड। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा तो इसने अज्यूम कर लिया कि मैं एयर हूं। फॉर्मूला हमारे सामने सी बाई वी एम है ना, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। अच्छा यहाँ पे आओगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो इसके जैसा तो ये मैंने लिखा है म्यू एम ए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? म्यू एम वन, पर इसके जैसा आप नहीं लिख सकते। फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा बोलो जल्दी से? इट इज वेलोसिटी इन मीडियम, sorry, in 1 upon velocity in m. Okay, so this will become the formula. I hope you have understood. Clear or not? Okay? Yes? Yes, sir. हाँ, ये जो मैंने लिखा है ये है ना, अब तुम क्या करोगे? देखो स्नेल्स लॉ एक्चुअली यहीं तक था, this was Snell's law. This entire thing is 0.5. समझ आ रहा है अभी? क्लियर? पक्का? So now you will note this very interestingly. अच्छा ये नोट करने के पहले ना जब आप 5 लिखोगे ना, 5 लिखोगे ना, तो ये वाला नोट कहीं पर पक्का लिख लेना, ये वाला, ये नोट पक्का लिखना भूलना मत कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फॉर नेक्स्ट मीडियम।
जल्दी फटाफट. Now you guys can write it. Please note this down quickly. The things which we have done, they tell us something. जब अभी तक हमने किया उससे एक बात समझ में आती है. दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव. है ना? अभी हमने अभी तक जो किया उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म अभी हमारा है, कितने नंबर हो चुके थे हमारे, कितना हो चुका था क्लासिफिकेशन को, हमने नंबर 5 दिया था ना. So number 6, refractive index formulae and relationships. Refractive index, formula and relationship. This is very very important. ठीक है ना? जरा ध्यान देना, जो मैं लिखूंगा बहुत काम की चीज है क्योंकि, ठीक है ना? एक बात तो पक्का है, जरा सुनना. अगर मैं म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखता हूं, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखता हूं, तो सर इसमें 3 चीजें हैं. पहला मीडियम 1, यस सुनो पक्का. दूसरा मीडियम 2, और तीसरा रिफ्रैक्शन फ्रॉम 1 to 2. सुनते हो कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? है ना? सर रिफ्रैक्शन फ्रॉम 1 to 2 बराबर. तो पहला क्या है मीडियम 1, दूसरा क्या है मीडियम 2, तीसरा क्या है रिफ्रैक्शन फ्रॉम 1 to 2. अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका ये मतलब होता है, ये मानते हो ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात समझी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका होता है कि नहीं होता है ना? अगर आपने सिर्फ वो बात समझी है तो आप एज अ टिप इसको लिख भी सकते हो. आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको लिखने को बहुत कुछ मिलेगा, है ना? तो ये आपका टिप है. क्या टिप है? कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is present for all mediums. ये टिप है, ध्यान में रखो, दिमाग में बात रखना, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ, देखो समझो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मीडियम सुनो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मीडियम 1 एयर हो, क्योंकि अगर एयर होता तो हमको 1 लिखने की भी जरूरत नहीं थी. तो मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है. तो मीडियम 1 अगर कुछ भी हो सकता है तो उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. अगर मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा?
खुद का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा सर। सर उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और आपने सिखाया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, म्यू 1, खत्म। ये सुनो, Yes. और इसका फॉर्मूला भी हमको याद है सर। क्या फॉर्मूला, जल्दी से बोलो। वेलोसिटी ऑफ एयर यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, c बाय v1। आप इसको c1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट है ना? c बाय v1 या फिर c1 भी चलेगा। अच्छा सर, अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम 2 है तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो? बराबर है ना? ये सुनो, पक्का? Yes. अच्छा, इसका तो सर हमको ऑलरेडी पता है, v1 अपॉन v2। ये सुनो, v1 अपॉन हाँ v2, सो सिंपल सर। v1 अपॉन v2 कितना अच्छा लगा देखने में, जरा देखो, सुनो जरा, सुनना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। Can I start like this? Consider mu of 2 with respect to 1 is equal to v1 upon v2, बराबर ना? Can I divide both of them by c? Can I divide numerator and denominator by c? Yes. Yes or no? This will turn out to become v1 upon v2 into c by c. Is it okay? Yes or no? Yes. सबको दिख तो रहा है ना? हाँ सर. अच्छा, तो मैंने क्या किया, सी से दोनों जगह डिवाइड किया, तो आप ऐसा बोलो, या फिर मल्टीप्लाई आप बाय सी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी। तो देखो मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं अब देखो जरा, कैन आई राइट इट एज, सुनना, कैन आई राइट इट एज सी अपॉन v2? कैन आई राइट इट एज सी अपॉन v2? सी अपॉन v2? yes, no? Yes. And can I write this as c upon v1? c upon v1, can I write this? yes or no? बेसिक मैथ्स, बताऊं क्या क्या हुआ इसमें, बताना पड़ेगा। सर्वेश, हैव यू अंडरस्टूड? अब बताऊं, सर्वेश, सानिया, हैव यू Sir, अंडरस्टूड? understood. अच्छा, हाउ अबाउट सानिया? ओके 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 ओके, है ना? तो गाइस, you only tell me what is the formula. You only tell me what is the formula. It is mu2 with respect to 1 is given by, देखो पढ़ते भी ऐसे ही है, mu2 with respect to 1 is given by mu2 by mu1। कितना सिंपल है पढ़ने में, mu2 with respect to 1, mu2 with respect to mu1, mu2 with respect to mu1, है ना? अच्छा, yes or no? Yes. So this is your first formula. The heading of this formula will be, heading of the formula you will write here, I am writing here, you will write here at the top itself, है ना? After 6, first के आगे क्या लिखना है, टाइटल बता रहा हूँ, सब टाइटल, okay? You will write relative refractive index in terms of absolute RIs,
of both medium. समझा क्या? ये तुम्हारा हेडिंग है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये दिस इज योर हेडिंग ऑफ फर्स्ट. उसके बाद आप ये लिखना चालू करें और यहाँ पे आके रुक जाएंगे. डू इट. ये इसके नीचे लिखना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा ताकि थोड़ा अच्छा दिखे. डू इट. दिस इज द फर्स्ट RI फॉर्मूला एंड रिलेशनशिप. Now understand this. Basically light is a wave, right? Yes. So waves have got certain features, certain attributes. तो दुनिया का कोई भी वेव होगा ना तो उसके पास एट्रीब्यूट्स होता है. यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ. Since light is a wave, है ना, therefore light has, it has got frequency, wavelength and speed. समझा क्या? It has got frequency, wavelength and speed. ये बात दिमाग में बिठा कर रखनी है. लाइट वेव है इसलिए लाइट के पास में तीन चीजें हैं. कौन सी? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड. एक फॉर्मूला है जो बहुत फेमस है, वेव फॉर्मूला बोलते हैं इसको. यस, वेव फॉर्मूला. मैं लिख देता हूं, वेव फॉर्मूला. इसको वेव इक्वेशन भी कई बार बोला जाता है. और फॉर्मूला क्या देख लो, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा या फिर एन लैम्डा. ठीक है, V इज इक्वल्स टू एन लैम्डा नहीं तो एफ लैम्डा. वो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं. एन मतलब फ्रीक्वेंसी हो सकता है ना, एफ मतलब भी फ्रीक्वेंसी होता है. तो पीपल यूज डिफरेंट नोटेशंस. जैसे लाइट स्पीड के लिए आप कभी V और कभी C यूज कर सकते हैं, उसी तरह से. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, ठीक है. अभी जरा सुनना. मेरे पास दो मीडियम्स हैं. ये देखो डिवाइड किया मैंने. ये ऊपर का मीडियम है, ये नीचे का मीडियम है. मान लो लाइट यहां से यहां जा रही है और वो इस तरह से कुछ टिल्ट हो गई, बेंड हो गई, है ना, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. अब जब ये बेंडिंग होगा, सो दिस इज वन लाइट विच इज कमिंग विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. एवरी लाइट इज गॉट अ फ्रीक्वेंसी, तो इसके पास होगी. इट इज अ लाइट विच इज कमिंग विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन वेवलेंथ आल्सो. सो व्हेन इट कम्स ओवर हियर एंड गोज इन दिस डायरेक्शन, तो अभी होता क्या है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलती है क्या? अगर लाइट यहां पे टकरा करके यहां से यहां गई तो उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलेगी क्या? Will the frequency of light go down or will it change with the change in medium? Yes, no? सर फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं बदलेगी क्योंकि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? एटलीस्ट वेव तो ऐसा ही कहता है. हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और कह सकता है, बट फिलहाल वेव थोड़ी देर के लिए ऐसा ही कहता है. थोड़ी देर के ऐसा मानते हैं हम कि उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी. तो क्या बदलेगा फिर उसका? अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो स्पीड तो बदला ना, स्पीड बदल रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो क्या बदलेगा उसका? वेवलेंथ, है ना. तो इन द कंडीशंस वेयर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, wavelength becomes directly proportional to velocity. Yes or no? Yes. In the conditions where frequency becomes constant, wavelength becomes directly proportional to velocity. Now I am giving you a task. Task is, ये जो next part है तुम्हारा task ही है. You are going to find out refractive index का फॉर्मूला. जैसे मैंने refractive index को V1/V2 लिखा है, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाता है, मैंने बाय चांस रेड लाइट भेजा तो रेड ही रहेगा वो. तो मेरा भी क्वेश्चन ये है कि जैसे फ्रीक्वेंसी सेम रहता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद में, तो जैसे V1/V2 है, वैसे F1/F2 तो हम थोड़ी देर के लिए बात ही नहीं करेंगे. तो हम बात किसकी करेंगे? λ1/λ2.
इसकी बात करेंगे, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एक फॉर्मूला बनने वाला है। क्या फॉर्मूला बनेगा देख लो। फॉर्मूला बनेगा कि सर अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मतलब 2 ऑफ विद रिस्पेक्ट टू 1 है, तो ये अपने को पता है कि सर ये C1 या V1 बोलूं मैं, C1 नहीं बोलता हूँ चलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होता है ना। और बिकॉज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रखता हूँ, तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा तो लैम्डा, देखो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो सर ये ऑटोमेटिकली लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? Yes. यस, बराबर है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको वेरीफाई करनी है और वर्कआउट करनी है, और इसमें से फॉर्मूला निकाल कर लाना है कि ये फॉर्मूला किस हद तक सही है, क्या ये फॉर्मूले में कुछ गलती है, क्या इस फॉर्मूले से और सारी चीजें निकल सकती हैं, इस फॉर्मूले का एक्चुअल मतलब क्या है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क टू वेरीफाई, अंडरस्टैंड and explain me after coming in the next lecture, right? So that is going to be your homework, a very important part, refractive index in terms of frequency and wavelength। क्या यहाँ पे frequencies भी आ सकती हैं, क्या कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं, ये सवाल मैं तुम लोग के सामने रख रहा हूँ, right? So you people are going to answer those questions by your research, right? You'll have to verify this formula whether it is correct, incorrect. If correct, can there be the relationship between n or n and not? If incorrect, then what is the correct relationship? Okay, so those things you'll have to find out and come up with the practical explanation to it. In the coming lecture we will start the lecture from this point. Okay, maybe tomorrow we'll have the lecture. Yes, and soon we are also starting with the chemistry lectures. Hello students, soon we are also starting with the chemistry lectures. Okay, I feel chemistry for you is difficult, so I've got one of my colleagues who will come up and take these lectures for you, as well as I will be there to take those lectures if needed, right? Okay, chalo, for today the lecture is done for this. Okay, that's all for today.